Act. We are discussing about check bouncing cases, which are also in the syllabus of HJS 2024 in Himachal Judiciary as well as for the ADA examinations. It is also important for the all advocates who are practicing in the lower courts, because check bouncing cases starts from the lower courts. How we can file a complaint, and what are the presumptions, what are the defenses, and which defenses cannot be taken. If we are clear upon these points, then we will be very comfortable to deal with these all these cases. So it is also a and with a syllabus for the judicial examinations 2024. Here is a question, section 141. Yesterday we had completed section 39, 139 and 140, and before day before yesterday we had taken 138. Now 141. Dikshit, are you getting the video? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलिए ठीक है फिर. So friends, as on your screen there is section 141. Many times the check bouncing cases related comes between two private persons. One is drawer and other is drawee, meaning thereby एक ने चेक दिया, दूसरे ने लिया और वो ट्रांजैक्शन चल रही है. That are private transactions, one to one. But many times what happens, friends, if you are dealing with the companies, there is also a financial transaction in the companies. तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर कंपनी अगर कोई चेक देती है तो कंपनी एक इंसान तो है नहीं, ना उसको सजा हो सकती है, ना उसको कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है. तो उस कंपनी के द्वारा दिए गए चेक को कैसे लड़ा जाए, कैसे किया जाए? What are the provisions when check is issued by the company and it got bounced? 138 की प्रोसीडिंग कंपनी के खिलाफ कैसे चलाई जाए? So that is very technical point and we must know how it is to be dealt. Here is a question for you all. Analyze the implications of section 141 regarding offences committed by companies under the Negotiable Instrument Act 1881. How have courts define the liability of directors and officers in this context? Support your answer with relevant case laws. Now here's a word, directors and officers. So it means the company is run by directors or officers. तो यहाँ पर 141 is specially meant for the persons or the cases where company is involved. Now we'll go through the answer first, और आंसर को देखते देखते हम समझ जाएंगे कि कंपनी किस तरीके से चार्ज की जाती है. How you will file a case against a company, what are the implications, how we should proceed, and who are to be made accused persons or respondents, right? So implications of section 141 of Negotiable Instrument Act. मेरी आवाज ठीक आ रही है आप तक? क्लियर है? जरा एक बार यस कर दें. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Section 141 of the Negotiable Instruments Act addresses the liability of companies and their directors or officers. Liabilities of companies and their directors and officers for offences committed under the Act, particularly in relation to dishonor of checks. This provision outlines the circumstances under which individuals in position of authority within a company can be held liable for offences committed by the company, ensuring accountability at both corporate and individual level. What it means? It means that the company is an entity. Simple एक entity एक नाम है, उसको चलाने वाला इंसान होगा, और वो इंसान कौन होगा? You know, formation of companies, so there must be a managing director, there must be directors, more than one. अब आजकल तो सिंगल एलपीए भी शुरू हो गई है, सिंगल मैन कंपनीज भी हैं, और उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स हु आर
who are dealing with the day-to-day affairs of the companies. तो ये डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के थ्रू चलती है कंपनी. तो मीनिंग देयर बाय इफ देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लायबल थ्रू देयर डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स. तो बड़ा क्लियर सा है. और ये सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के केस के लिए, भले फूड एडल्ट्रेशन का केस हो, भले ही कोई आईपीसी का हो, भले ही किसी सिविल मैटर में हो, तो वहां पर कंपनी को एक एंटिटी के तौर पे पार्टी तो बनाना ही है, कॉर्पोरेट एंटिटी, बट थ्रू किसके होगा? वो होगा मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑफिसर्स. तो ऑलवेज व्हेन यू आर मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ कंपनी फॉर डिसऑनर ऑफ चेक्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डिसऑनर ऑफ चेक टुडे. डिसऑनर ऑफ चेक के लिए every time, first of all, number one will be the company's name which had issued the check, क्योंकि जो चेक इशू होगा वो कंपनी के नाम से होगा, वो किसी डायरेक्टर के नाम से नहीं होगा. सिग्नेटरी डायरेक्टर या ऑफिसर, ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो सकता है, बिकॉज दैट इज रन बाय थ्रू दोज पर्सन. नंबर वन पे कंपनी, सेकंड पे डायरेक्टर्स और ऑफिसर, जिसका भी नीचे चेक के अंदर नाम है. डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का, डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स, और ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो ऑथोराइज सिग्नेटरी. ये एक बड़ा क्लियर सा फंडा है इसके अंदर, जिसे हम सबको समझना है. तो यहाँ पर जो भी डायरेक्टर है या ऑफिसर है कंपनी के अफेयर्स को देख रहा है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड इंडिविजुअली इन हिज ओन कैपेसिटी, because he is holding that post for the company, he is working for the company. तो दोनों तरह से वो व्यक्ति जो कि मैनेजर है, मैनेजमेंट कर रहा है, he is liable for the punishments if passed by the honorable courts. Here key aspects क्या है 141 के, आप देख लीजिए जरा स्क्रीन के ऊपर. Liability of companies, how it is to be fixed. Section 141 establishes that it is a company committed if a company commits an offense under Section 138, dishonorable check. The company itself is deemed guilty and liable for punishment. सबसे पहले तो कोर्ट कंपनी को ये मानेगा कि कंपनी ने ऑफेंस किया है. This ensures that the company as a legal entity, because if the company is registered somewhere under the company's law, then it is treated as legal entity. एक legal entity माना जाता है कंपनी को. Can be held accountable for its financial obligations. First है liability of the companies. 141 के अंदर if some offense has been committed, it will be treated that the company legal entity had committed an offense. कोई भी XYZ कंपनी का नाम हो सकता है. Yes, you are, the company is liable for the offense under section 138. नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है जो लीगल एंटिटी को अकाउंटेबल बनाया गया फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के लिए, यानी पनिशमेंट के लिए. तो पनिशमेंट किसको दी जाएगी? अब उस पेपर को तो दी नहीं जाएगी जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा है, या वो बोर्ड या वो, उनको तो दी नहीं जाएगी. तो उसका कोई ना कोई इंसान जरूर होगा, और वो इंसान कौन है? सेकंड देखिए, liability of directors and officers. The section extends liability to every person who was in charge of and responsible for the conduct of business of the company at the time of offense was committed. This provision is crucial as it holds individual directors and officers accountable, preventing them from escaping liability merely because they acted on behalf of the company. अब क्या है यहाँ, जब भी कंपनी को होल्ड किया गया गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो उसमें ये जो लायबिलिटी है दैट एक्सटेंड्स टू एवरी पर्सन. एवरी पर्सन मींस जो उस कंपनी का इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल है उन पर्पस, उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड. जब ये ऑफेंस हुआ, यानी कि 138 का चेक बाउंस हुआ और नोटिस गया कंपनी को, नोटिस के बाद पैसा टर्न अप नहीं हुए, कंप्लेंट जब फाइल करनी है, मतलब रिकॉर्डिंग पीरियड आफ्टर 15 days लैप्स आफ्टर द नोटिस, उस वक्त जो कंपनी को उस वक्त डे टू डे अफेयर्स में कंडक्ट कर रहा है, जो उसका इंचार्ज है, डायरेक्टर्स है या कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी,
he will be held liable for those. और वो इंडिविजुअल पर्सन या डायरेक्टर्स या ऑफिसर अकाउंटेबल होंगे कंपनी के गिल्ट के लिए, क्योंकि चेक भी उन्होंने काटा है, उनके हाथ से कटा है, उनके सिग्नेचर्स हैं, कंपनी का एक नाम है, लेकिन उस नाम के ऊपर ही सजा होनी है, गिल्ट होनी है। गिल्ट होल्ड की तो सजा भी होनी है। सजा किसको होगी? जो सिग्नेटरीज को या जो डे टू डे कंडक्ट करते हैं अफेयर्स को। तो यहां पर डायरेक्टर या ऑफिसर ये नहीं बोल सकते कि सर हम तो कंपनी के लिए काम करते हैं, हमारा क्या लेना देना इस चीज से। नो, लेना देना है। वंस यू हैड इशूड चेक्स, देन यू आर हेल्ड लाइबल vicariously on behalf of the company, vicariously, individually and vicariously। ये दोनों चीजें होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर में आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड इंडिविजुअल लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, राइट। तो कंपनी को जब भी सजा देनी है तो उसके डायरेक्टर्स को या ऑफिसर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा होगी, एंड दे मस्ट बी मेड पार्टी। अब डिफेंसेस अवेलेबल क्या है कंपनी के पास? ये तो क्लियर हो गया 141 में कि इफ सम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी, देन इट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज लीगल एंटिटी, its directors or officials or officers in charge, they are held liable for the punishment. Now there are certain defenses। अब देखिए, एक कंपनी के पास 5 डायरेक्टर हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन अब सबको तो सजा नहीं दी जा सकती। और कुछ डायरेक्टर्स काम करते हैं, कुछ पैरामाउंट रहते हैं, पैरासाइड मतलब पैसिव रहते हैं, वो सिर्फ डिविडेंड ले रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी में फाइनेंस लगा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बिजी इन डे टू डे वर्क्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसी कंडीशन में इफ देयर आर 10 डायरेक्टर्स, इफ देयर आर 10 डायरेक्टर्स, तो 10 के 10 डायरेक्टर ये जरूरी नहीं है कि वो सजा के हकदार हो। If there are 10 authorized signatories and different for different aspects, it doesn't mean that the all are liable for the punishment। तो यहां पर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है या ऑथोराइज सिग्नेटरी है या ऑफिसर्स है, उनके पास एक डिफेंस है। अगर उनको पार्टी बना दिया तो व्हाट इज दैट डिफेंस? इफ दैट डिफेंस इज नॉट क्लियर, then every director or every officer concerned डे टू डे प्रोसीडिंग जो कर रहा है, कंपनी के अफेयर्स को देख रहा है, they all will be held liable। then what is the defense? Directors and officers can defend themselves by proving that the offense was committed without their knowledge। number one defense है, if some directors are made party to the complaint, then one comes to you, you have to show first that I am not concerned with the active management of this particular company। The papers must be shown कि मैं एक्टिव नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो एक डायरेक्टर हूं, बट आई एम नॉट टेकिंग अप ऑल द मैटर्स, डे टू डे रूटीन मैटर्स ऑफ द कंपनी। One thing। Secondly, or the offense has committed without my knowledge, I am not in the knowledge that the check has been issued to some person on behalf of the company, because I am not concerned with that particular department। परचेज सेल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेन देन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ बाहर फील्ड में जाके सिर्फ एक उनकी पब्लिसिटी करता हूं। मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। हाउ द चेक हैज बीन इशूड एंड अंडर विच कंडीशंस इट हैज बीन इशूड, देयर इज अनदर डॉक्यूमेंट, अनदर पर्सन authorized for that thing, or other directors who are responsible for this management। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू शो ऑन पेपर्स, नंबर वन। सेकेंडली, हाँ, चेक इशू हुआ, सब कुछ हुआ, मेरे नॉलेज में हुआ, लेकिन वी एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन। हमने पूरी कोशिश करी, ड्यू डिलीजेंस, ईमानदारी से ये कोशिश करी थी कि चेक बाउंस ना हो, बट ड्यू टू सर्टेन फाइनेंशियल crunches or due to another unavoidable circumstances, this happens, sir।
But it was not in our knowledge, it was not in our mind that the check will be dishonored. There was no ill will. It is to be shown. आप दिखा सकते हैं कि जिस दिन चेक इशू हुआ था सर, उस दिन कंपनी के अकाउंट में पैसा था, लेकिन जैसे ही चेक लगना था तो कंपनी में आग लगी या कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया, उस कोर्ट का स्टे आ गया कि कंपनी के अकाउंट से कोई पैसा नहीं होगा, सीज कर दिया, या ईडी की रेड पड़ गई या सीबीआई की रेड पड़ गई, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, हमारे अकाउंट सीज हो गए। तो इस वजह से हम इसको नहीं कर पाए, अदरवाइज ड्यू डिलीजेंस हमने किया, इसलिए ये चेक बाउंस हुआ है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस। तो दीज आर टू थिंग्स, वन विदाउट माई नॉलेज, और आई हैड और वी हैड committed exercise due diligence to prevent the commission। ये दो ही हमारे पास कंपनी के डायरेक्टर और ऑफिसर्स के लिए डिफरेंसेस हैं। if you are dealing with the cases for these officers or directors, then first of all take this defense, but defense should be plausible, it must be associated with the proper evidence, not saying only कि नहीं जी मुझे नहीं पता। you have to show the memorandum, you have to show the जो आपकी वो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स का रजिस्टर है कि नहीं, जो पैसे का मतलब लेन देन है चेक इशू करने का, वो पर्टिकुलरली एक आदमी या दो आदमियों को दिया गया है, देन यू विल बी आउट फ्रॉम दैट फ्रे। तो सो आई होप सो कि यू आर क्लियर नाउ ऑन दीज पॉइंट्स। एक तो कंपनी के खिलाफ जब भी कोई केस करना है तो कंपनी को पार्टी बना के उस लीगल एंटिटी उसके साथ उसके डायरेक्टर्स को पार्टी बनाना है, नंबर वन। नंबर टू, डायरेक्टर्स के पास डिफेंस ये है कि आई वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद ऑफेंस, सेकेंडली, और वी हैड डन ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन। Is it okay, friends? If you are hearing, then say yes or no, so I can proceed further. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ओके। अब थोड़े केस लॉज देख लेते हैं इसके ऊपर। Several landmark cases which are as below. Messrs SMS Pharmaceuticals Limited versus Neeta Bhalla, 2005. It is a landmark judgment. Messrs SM Pharmaceuticals Limited versus Neeta Bhalla, 2005. You just note down it and go through the judgments। जो भी मैं बोल रहा हूं आपको इनमें जाना है, पढ़ना, इससे आपको बहुत क्लैरिटीज हो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 141 को इसमें बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है। मैं नटशेल में आपको इसका थोड़ा रिजल्ट दे रहा हूँ। In this case, the Supreme Court emphasized that the Section 141 creates a presumption of liability against the director and officers of a company. Presumption क्या है? Creates a presumption. Liability against the director and officers of the company. There is a presumption of Supreme Court that if the, not of the Supreme Court, but the law, legislature, that if offense is committed by a company, its all directors or officers, they are held liable। ये फर्स्ट प्रिजम्पशन है। फर्स्ट प्रिजम्पशन कोर्ट यही करेगा कि जितने भी डायरेक्टर हैं सबने ये ऑफेंस कमिट किया है, until and unless it is not proven that I was not in active participation, जो हमने अभी डिफेंस देखे ऊपर, और we had done with due diligence। दो चीजें हैं, पहले सबको माना जाएगा कि सबने इकट्ठे काम किया है और इलीगल एक्ट किया है, जानबूझकर किया है, चेक बाउंसिंग हुई है, तो ऑफेंस आपने कमिट किया है। अब कोर्ट ने क्या कहा इसमें? The court held that once it is established that the company committed an offense, the burden shifts to the accused individuals to prove their innocence। The ruling reinforced the notion that individuals in position or authority must be vigilant and cannot claim ignorance of the company's operation। तो यहाँ क्या बोला है कि every person, every director of the company will be held, presumption will be that they all had done the offense।
But the burden shifts to the person who says that I am innocent, sir. To prove your innocence. Otherwise, go behind the bar. इस जजमेंट के अंदर बड़ा क्लियर से लिखा गया है कि इनोसेंस जिसने प्रूव कर दिया बच गया, जो नहीं कर पाया वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर वो जेल में जाएगा और पनिशमेंट का हकदार होगा। अब एक और जजमेंट है के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1954 की जजमेंट है। The court clarified that the term person in section 141 includes individual in control of the company. If one person or two persons, three persons, they are controlling the company in individual capacity, but working for the company, for the day-to-day affairs of the company. तो यहां पर पर्सन का मतलब इंडिविजुअल्स इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी है। हु इज हेल्ड लायबल, what person will be held liable? Person 141 के अंदर पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल्स इन कंट्रोल ऑफ कंपनी। एमसीक्यू आ सकता है आप लोगों को, तो एमसीक्यू के इंडिविजुअल्स मींस एवरी डायरेक्टर, एवरी ऑफिसर, until and unless they proves innocence by way of above given two aspects, that I am not concerned directly. Second, ड्यू डिलिजेंस वाज देयर। तब तक हर इंडिविजुअल पर्सन जो कंपनी के कंट्रोल कर रहा है उसको पर्सन की परिभाषा के अंदर ही विल बी हेल्ड लायबल। द जजमेंट हाईलाइटेड दैट अ डायरेक्टर or officer must demonstrate due diligence in preventing the commission of the offense. Failure to do so would result in their liability alongside the company. दोनों कंपनी के बिहाफ के ऊपर सब जाएंगे, अगर चाहे वो एक है, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे 10 है, जितने भी उसके एंटाइटीज हैं, जो एंटाइटी बॉडी के जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिसर्स, जो भी डेजिग्नेशन है, तो वो सब लायबल है जब तक कि वो डेमोस्ट्रेट नहीं करते कि ड्यू डिलिजेंस प्रिवेंट करने, ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए हमने ड्यू डिलिजेंस से काम किया, ईमानदारी से काम किया, हर हिदायत को ध्यान में रखा, हर एहतियात को बरता, लेकिन हो गया सर, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में हो गया, तब तक वो सब लायबल है। थर्ड केस है धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड वर्सेस जेएमएलडी, धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड वर्सेस जेएमएलडी 2014 का यह केस है। दिस केस अंडरस्कोर्ड द प्रिंसिपल दैट company and its officers could be prosecuted simultaneously. The Supreme Court ruled that Section 141 imposes strict liability on those in charge of companies' operations, reinforcing the accountability of directors and officers for the financial action of the company. तो 141 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि सारे के सारे ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स दे मे बी प्रोसिक्यूटेड साइमल्टेनियसली, मतलब कंपनी के थ्रू भी और कंपनी के ब्याप के ऊपर इंडिविजुअली भी, until unless they proves उससे अलग, यानी ड्यू डिलिजेंस प्रूव कर रहे हैं या इनोसेंस प्रूव कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इनोसेंस या ड्यू डिलिजेंस प्रूव करने के लिए देयर इज रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज नहीं चलेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि मैं एक बयान दे दूंगा, दो आदमियों के बयान करा दूंगा कि सर ही वाज नॉट इन द रेगुलर अफेयर्स, या मैंने बयान दे दिया कोर्ट में आके कि सर आई एम नॉट इन द रेगुलर अफेयर्स, या मैं तो कहीं और रहता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, ओनली स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट। वो प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि कोर्ट ये समझ ले कि सर नहीं करता है, चार आदमी रखे हैं सर, वही काम देखते हैं। दिस ओनली स्टेटमेंट इज नॉट conclusive or complete. Strict liability means you have to show
the relevant documents. You have to show the proceedings of the company that you are not in direct connection with the financial matters. One. Secondly, सर हमने तो कोशिश करी थी, हमने बड़े ड्यू डिलीजेंस करी थी, only speaking is not sufficient. Pleading is not sufficient. You have to prove it on the record by cogent evidence that this was the due diligence and what were the circumstances. We couldn't stop it. इन सर्कमस्टांसिस में आग लगी है तो दिखाइए आग का है भाई, एफआईआर दिखाइए, प्रोसीडिंग्स दिखाइए. अगर कोई कंपनी के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया तो शो द पेपर्स वेयर द कोर्ट हैज स्टॉप्ड. इफ कंपनी का अकाउंट सीज हो गया है तो यू हैव टू शो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ड्यू टू दिस द कंपनी कुड नॉट, और ये अनअवॉइडेबल है, ये हमारे हाथ में नहीं रहा, देन तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है. यहां पर 141 में अगर किसी ने, इफ द डायरेक्टर्स वांट्स टू एब्सॉर्ब देम फ्रॉम देयर लायबिलिटीज, एब्सॉर्ब देमसेल्फ, अपने आप को निकालना है बाहर, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रूफ चाहिए, नॉट प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. ओके फ्रेंड्स. एक और जजमेंट है, K.S. Muralidharan versus State of Kerala 2005. In this case, the Kerala High Court examined the liability of managing directors under Section 141. Liability of managing director. The court found that the managing director was responsible for the company's operations and thus liable for the offense of dishonor of check. The ruling emphasized that mere delegation of authority does not absolve individuals of liability. अब यह मैनेजिंग डायरेक्टर की बात आई है, केरला हाई कोर्ट ने कहा है the managing director is supposed to deal with all affairs. He is responsible for all affairs of the company. That's why for the dishonor of check also, this person who is managing director, he is responsible. Merely saying that कि सर मैंने तो ये अपने किसी मैनेजर को या किसी ऑथोराइज सिग्नेटरी को दिया था ये काम करने के लिए, उसकी गलती से हुआ है, सो आई मे बी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द. No, it is your duty. Whether you are delegated the powers or not, it's your problem. But once your person to whom you are delegated the powers had committed that offense, it means it has been committed by you. And it is in your knowledge. Because you are wholly solely managing director हो. तो मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है उसके प्रॉस एंड कॉन्स को कंपनी के नफे नुकसान के लिए तुम जिम्मेवार हो. ये क्लियर कट है. तो इस जजमेंट के बाद एक और लास्ट जजमेंट है, लक्ष्मी डाइचिम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012. These all judgments deals with the company if the offense has been committed by the company. उसके लिए ये जजमेंट्स हैं आपके पास. अलग अलग व्यूज आए हैं इसके अंदर, अलग अलग कंटेंट्स हैं, अलग अलग prepositions हैं, but all together if we go through these judgments we can make it clear that 141 के अंदर कंपनीज द्वारा किए गए ऑफेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर की क्या स्टेटस है, डायरेक्टर्स का क्या स्टेटस है, ऑथोराइज सिग्नेटरी का क्या स्टेटस है, ऑफिसर्स का क्या स्टेटस है, और उनको सजा कैसे मिलेगी, और अंडर विच सर्कमस्टांसेस दे कैन कम आउट फ्रॉम दिस पनिशमेंट लेवल. तो इन जजमेंट्स को आपने एक बार जरूर देखना है, ये आप सबके काम आएगी. The Supreme Court reiterated that liability under Section 141 is not limited to the directors. ये सिर्फ लिमिटेड डायरेक्टर तक के लिए सीमित नहीं है, but extends to anyone responsible for the conduct of the company's business. The judgment stresses that active involvement in the company's affairs is crucial for establishing liability. अब ऐसा नहीं कह सकते कि जो 5, 6, 7, 2, 3, 4 डायरेक्टर्स है कंपनी के चेक बाउंसिंग में वही लायबल है, बाकी हम तो कर्मचारी हैं सर.
हम तो मुलाजिम है, जैसा डायरेक्टर कहेगा वैसा होगा। नो, इफ यू आर as a company employee doing some company's business and you are responsible for that conduct, for that particular transaction, you are specially meant for that thing, you are doing that particular act or transactions, then being a officer of the company, apart from the directors, you are also held liable. चेक तो तुमने काटा ना, अकाउंट तो तुम चेक करते थे, रोज रोज के जो घटाना जमा करना, कंपनी के प्रॉफिट लॉस को तो तुम देखते थे। यू हैड इशूड चेक, डायरेक्टर के पास गए, साइन करवाया आपने। इट मींस कि अब डायरेक्टर को क्या पता है कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, बट यू आर द अकाउंटेंट, यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन टू डू डील विद दीज थिंग्स। जब आप लोग को पता था कि वहां हमारे पास इतना अकाउंट में अमाउंट नहीं है, देन व्हाई यू आर नॉट टोल्ड दिस थिंग टू द डायरेक्टर्स? इट मींस यू आर आल्सो लायबल, क्योंकि तुम कंपनी का काम देखते थे। That's why, friends, if one person is responsible for the conduct of the company's business, though he is an employee, he is not in the director board, but he is also liable for the punishment. तो यहाँ बड़े क्लियर कट तरीके से इस जजमेंट के अंदर ये कहा, और सब में ही कहा गया है। ये कुछ पॉइंट्स उठाए हमने, तो सब में ये कंक्लूजन ये आता है। इसका क्या कंक्लूजन आता है? Section 141 of the NI Act plays a significant role in addressing corporate accountability. ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बड़ी खतरनाक है। एक दूसरे के सिर पर डाल देता, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के, और जो आम आदमी है, गरीब आदमी जिसने चेक लिया और पैसे दिए हैं कंपनी को, वो मर जाता है। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए कंपनीज की इस ब्लैकमेलिंग सिस्टम को या इस अवॉइडिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी शो करने के लिए 141 इंसर्ट किया गया है। By imposing liability on both the company and the director or officers, the provision ensures that individual in position of authority cannot evade responsibility for the company's financial misconduct. The interpretation of this section by various courts further emphasizes the need for vigilance and due diligence among corporate leaders, promoting a culture of accountability within the companies. इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है कि कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, दोनों लायबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो हमारा ये ट्रांजेक्शन मैटर है, पेपर ट्रांजेक्शन यानी चेक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इनके ऊपर नकेल कसने के लिए, इनको अच्छे तरीके से सिस्टम में डेवलप करने के लिए और पैसे के लेन देन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये वाला इंसर्ट किया गया सेक्शन। भले वो कंपनी हो तो कंपनी में कौन कौन है रिस्पॉन्सिबल, और कोई इंडिविजुअल है तो 138 1 is there. So friends, in the end, बिकॉज 141 का अगर क्वेश्चन आता है तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। इट रिलेट्स टू द कंपनीज, व्हेन कंपनी इश्यूज सम चेक, एक चीज, और कंपनी इशू करती है तो कौन कौन लायबल हैं, और अगर लायबिलिटी से बचना है तो डायरेक्टर या ऑफिसर को क्या करना है। तो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन अ डिटेल मैनर विद द सपोर्ट ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट and 1 or 2 of the honorable high courts. I hope so, friends, that you will be benefited from this. Make a note, judgments को ध्यान से पढ़ लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी जिंदगी में आता है, भले वो टेस्ट में आए, चाहे आपके डे टू डे अफेयर्स ऑफ द प्रैक्टिस, और इन स्टूडेंट लेवल, और इन AIB और ADA टेस्ट, कहीं भी आता है तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो तीन चीजें याद रखनी है। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, और जो उसके डायरेक्टर्स या वो रिस्पॉन्सिबल है until and unless contrary is not proved. थर्ड, सेकंड, जो ऑफिसर्स हैं, भले ही वो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर वो डेली डे टू डे प्रोसीडिंग के वो पार्ट है तो दे आर ऑल्सो लायबल फॉर दैट। और अगर इसको
एब्सॉल्व करना है अपने आप को, तो यू हैव टू शो दैट आई एम इनोसेंट और आई एम नॉट directly concerned with this particular transaction matters, and if I know it, then this offense was not committed deliberately, but it was under un yeah enforced circumstances. Due diligence was done to evade, to वो क्या कह सकते हैं उसको, to avoid the offense. Okay, friends? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज इतना ही करेंगे. आई हैव टू लीव समवेयर, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या करें, अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. बिकॉज आई हैव टू डिलीवर द लेक्चर, आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू कई कुछ देखना पड़ता है साथ साथ. अकेले इस वक्त कौन मिलता है अदरवाइज साथ में, राइट? आई ट्राइड माई बेस्ट. किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्लैरिटी हो या कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन से बता सकते हैं. तो पूछूं जरा एक आधा सवाल आप लोगों से, क्या समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? हाँ, तो पहले तो आपको यही बोलना है, बताना है कि 141 किससे डील करता है? Companies. 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 कंपनीज. क्या कंपनीज का क्या? What about companies? If the offense has been committed by a company, not companies, the offense is committed by the company. And on another way, if some individual persons make some offense against the company, how you will draft your pleadings complaint? तो हमने बता दिया कि ऑफेंस अगर कंपनी ने क्रिएट किया है, कंपनी की तरफ से चेक बाउंस हुआ है, कंपनी का दिया हुआ चेक, तो कंपनी को बनाना है, उसके डायरेक्टर्स को बनाना है या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को. लेकिन अगर कंपनी सर कंपनी बनी पार्टी नॉट एमडी और तो यही चीज ऊपर कर ले आनी है आपने. कंप्लेनेंट के लिए कंपनी पहले होगी, एमएस प्राइवेट लिमिटेड जो भी नाम है कुछ भी, वो फर्स्ट में आएगा. उसके बाद उसका मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा या थ्रू डायरेक्टर जिसको ऑथराइज किया होगा कंपनी ने. मैक्सिमम टाइम से गलती हो जाती है जब हम कंप्लेंट करते हैं, और दिस इज अ सोल ग्राउंड फॉर डिसमिसल. सोल ग्राउंड. Maximum times we see that a company is not made as a party either in the complaint or in the respondent side. तो कभी भी जिंदगी में कंपनीज के बारे में कभी भी बात आए तो कंपनी को पहले पार्टी बनाना है, और सेकंड में उसके थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी कंपनी ने अपने बायलॉज के अंदर या स्पेशल प्रोसीडिंग से किसी को डेलीगेट किया है. यह है कंप्लेंट साइड से. और जब रिस्पोंडेंट साइड में आगे हम कंपनी का चेक बाउंस हुआ है तो कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को पार्टी बनाना है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए आज के लिए इतना काफी है. अब अगला क्लास लेंगे हम मंडे को. मंडे शाम को मिलते हैं दोबारा से. हैव यू एंजॉयड दिस? Yes, sir. Yes, sir. गॉट सम न्यू थिंग? Yes, sir. कोई नई चीज मिली कि नहीं मिली इससे आपको आज के डिस्कशन से? कोई नई Yes, sir. चीज? Yes, sir. क्या मिला बताइए जरा. मैं इसमें एक तो पहले तो हमने ये सीखा था ना सर, कंपनी अगर लॉस हुआ है तो उसको पार्टी हमने बनाई, और इस बार कंपनी का बाउंस को कंपनी किस तरह से कर सकती है. हाँ,
ठीक है, तो आई होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। प्रिजम्पशंस वही हैं, डिफेंसेस वही हैं जो 140 में है, प्रिजम्पशंस वही है 139 की ही, जी वो नहीं एब्जॉल्व होती है, चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है। 139 140 is there for all, either individual or a company, कोई चेंज नहीं है। लेकिन 141 स्पेशली फॉर द कंपनी पर्पसेस बनाया गया है। तो कंपनीज के बारे में अगर कभी केस करना है तो एक बार फिर से जब भी केस ड्राफ्ट करो तो कंपनीज को जो 141 को जरूर पढ़ लीजिए, देन अदरवाइज बाकी सब ठीक है। 142 कल परसों करेंगे, 43 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों, 142 और 143 है तो सारे इंपॉर्टेंट है। 10 सेक्शन है, कर लेंगे हम नेक्स्ट वीक में खत्म, इसको आराम से करेंगे ये। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो चेक के केसेस हैं ये सिर्फ जुडिशियल प्रेपरेशन के लिए पार्ट नहीं है, ये आपके डे टू डे रूटीन का पार्ट है। और अगर एक बार इन 10 सेक्शंस को हमने अच्छे से समझ लिया, इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लिए, इसके गुड बैड्स देख लिए और हाउ टू अप्लाई इट, तो आपका कंप्लीट एक कॉर्पोरेट सेक्टर का, यानी या कहूं कि एक लीगल साइड का एक अलग पार्ट है ये। दिस इज ऑल्सो स्पेशलाइजेशन। चेक केसेस की स्पेशलाइजेशन सिर्फ 10 सेक्शन, सबसे छोटा काम है। अगर अच्छे एडवोकेट बनना है, चेक बाउंसिंग के केस भी अगर आप करना शुरू कर देते हो तब भी एक रोजी रोटी का बहुत अच्छा साधन है। सिर्फ चेक के केस ही करने हैं भाई मैंने तो, बस ये स्पेशलाइजेशन पार्ट है। इफ यू आर इन हाई कोर्ट देन यू कैन बी ए एक्सपर्ट ऑफ चेक्स, इफ यू आर इन लोअर कोर्ट देन ऑल्सो। तो लोग आपके पास आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, और सीधा अच्छा इनकम का सोर्स है ये, इंडिविजुअल अकेला सोर्स है। सो प्लीज इसमें जरा ध्यान दीजिए। सबसे छोटा एक्ट है, सबसे छोटा पार्ट है, कोई ज्यादा झंझट वाला काम नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें समझनी है। 38 से 138 से 148 तक, एंड यू कैन बी ए गुड एक्सपर्ट ऑफ द चेक्स। ओके, गुड लक, जी सर। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स फॉर द नियर फ्यूचर। टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विल मीट, सोमवार की शाम को 8 बजे। ओके, बाय बाय।